Welcome student. In this video, we will try to complete our practical number 8A. It is develop a simple inventory application using JPA. So first we need to understand what do you mean by the JPA. So JPA stands for Java Persistent API, Application Programming Interface. It was being initially released on 11th May 2006. It is a Java specification that gives some functionality and standard ORM. So ORM क्या होता है? ORM stand for Object Relational Mapping. मतलब क्या होता है? सिंपल है, जावा में हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ प्ले करते हैं और RDBMS में डेटाबेस में हम लोग रोज के साथ प्ले करते हैं, टेबल के साथ प्ले करते हैं. तो यार JDBC के थ्रू हम लोग जब डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो आपको हर वक्त रिकॉर्ड्स मिलने वाले और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हैंडल करने वाले. So what is needed? We need some kind of mechanism which automatically converts the record into the object and object back towards what you record. So I am able to pass the objects only to the method and the data will be automatically added or been retrieved also properly. So that's the reason why exactly a JPA has been introduced. फिर JPA Eclipse Link ने दे दिया, JPA आप लोगों को दे दिया हुआ है Hibernate ने. So these are all the different variations of JPA. तो आज हम लोग देखेंगे in this program how to work with JP. But before that, one important thing, I already have one database created which is named as what ये BSc IT. तो दो आया हुआ है यहाँ पे, चलो यार ये BSc IT को देखते हैं. So BSc IT नाम का डेटाबेस को मैंने कनेक्ट कर लिया. पासवर्ड मालूम है आपको, रूट है, मेरा वाला रूट है, आपका जो रहेगा वो. और यहाँ पे BSc IT में मैंने एक टेबल बना कर रखा हुआ है that is named as what ये इन्वेंट्री. इसमें SKU नाम का कॉलम है, आइटम नेम का कॉलम है, आइटम प्राइस है एंड आइटम क्वांटिटी है. व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू डेवलप अ JP. सर ये टेबल कैसे बनाया, प्रैक्टिकल नंबर 1B का वीडियो देखो, आपको MySQL का टेबल कैसे बनाने का वो समझ में आ जाएगा. एंड करंटली आई एम यूजिंग माई MySQL वर्जन 8. अगर 5 रहेगा तो बहुत सारा चीजें रिक्वायर्ड नहीं रहेगा. 8 है तो कुछ कुछ चीजें आपको चेंजेस करना पड़ेगा बिकॉज नया वर्जन आपने इंप्लीमेंट किया होगा. So let us try to create one small JPA application which allows you to accept the data from the user and add it as a record inside your inventory table. So देखते हैं inventory table में कुछ records है कि नहीं. तो मैंने view data में चला गया. I think so. I am having one record over here which is item name ABCD, item price 23 and item quantity I think so 1. So fine. So what I'm expecting to develop one small JPA web application or JPA along with a web application. So let's start working on it. बराबर से ध्यान देना, सिंपल है प्रोग्राम, इतना मुश्किल नहीं. मैं फाइल में चला गया, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में चला गया. न्यू प्रोजेक्ट में मैंने जावा वेब को सिलेक्ट कर दिया, वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट क्लिक कर लिया. सेम ही है, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल 8A. Then I'd given a click on what your next ये है, use dedicated folder for storing libraries. Please check on this particular checkbox. Then give a click on next. Glassfish सर्वर में ले लिया, अगर आपको दूसरा कुछ सर्वर चाहिए तो आप वो स्पेसिफाई कर सकते हो. Then यहाँ पे next में क्लिक कर दिया. No framework need to be selected, no Hibernate etc. We are working with plain JPAs. Then given a click on finish. So I had created my practical number 8A project. Now few things which is by default created is called as what index.html and I will try to complete the work of my index.html. तो मैंने एक छोटा सा HTML का फॉर्म यहाँ पे बना कर रखा है जो डेटा को एक्सेप्ट करेगा और रिक्वायरमेंट भेजेगा check inventory.jsp के पास. मेथड पोस्ट होगा. एक बार ये फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ. I will just try to go for showing you the contents of the form. बहुत सिंपल है. मैंने फॉर्म में एक्शन में मे बी एड इन्वेंटरी लिख दिया, एड इन्वेंटरी मेथड बना दिया. यहाँ पे मैंने क्या पोस्ट, फिर एक टेबल बना दिया हुआ है और टेबल में आइटम नेम को एक्सेप्ट कर दिया है, नेम दिया आइटम नेम. फिर मे बी आइटम प्राइस को लिया हुआ, आइटम क्वांटिटी को लिया हुआ है एंड SKU को भी लेना चाहिए था. SKU को लिया कि नहीं लिया? No, we are not yet taken what you can say SKU. So I will just try to add up one additional item. ये क्या हो गया, /41, ये कुछ तो अलग आ गया. I will just remove this. This is need to be your closing of the TR. And next will be I'm planning to add up my TR once again. Here I am adding my TD.
saying SKU and closing of TD, and then providing input type equal to number, and further I'm providing name equal to SKU. बस इतना ठीक है. तो मेरा फॉर्म तो बन के हो गया. I just would like to check how exactly it looks. So I just give a click on the run file, Glassfish server gets started, and here I will check how the application is being shown, how the HTML form is being shown to us. तो ये HTML में हम लोग क्या करने वाले, डेटा को फीड करने वाले, सबमिट किया जाएगा. तो इन्वेंट्री में एड इन्वेंट्री नाम का एक सर्वलेट है, उसमें आपका फॉर्म ये डेटा को पास कर देगा. देखो फॉर्म में स्पेसिफाई किया मैंने एक्शन एज एड इन्वेंट्री, मेथड टाइप दिया है मैंने पोस्ट. सो ये डेटा पूरा कलेक्ट किया जाएगा सबमिट से और डेटा पास किया जाएगा एड इन्वेंटरी नाम के सर्वलेट के पास. एंड एड इन्वेंटरी विल बी एडिंग दोज वैल्यू इन माय इन्वेंटरी टेबल, बट नॉट नॉर्मली, बट बाय यूजिंग व्हाट यूर JPA. तो थोड़ा सा गलती हो गया, जरा देखते हैं क्या हो गया. ये SKU TD डाला हुआ है, हाँ इसको TD डाला नहीं था, इसके भी TD डाल देता हूं. सो अगेन आई एडेड द TD ओवर हियर. सो लेट्स सी द लुक एंड फील इज बेटर और नॉट. ठीक ठाक है, आप लोग थोड़ा एफर्ट डालो लुक एंड फील के ऊपर. चलो यहां तक तो हो गया और एड इन्वेंटरी क्लिक कर दिया तो वो सर्वलेट के पास जाएगा जिसका नाम रहेगा एड इन्वेंटरी. अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल के सब सोर्स कोड है मैं सब अपना अपलोड कर दूंगा टूवर्ड्स आवर टेलीग्राम चैनल. सो बाद में वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. सर चैनल पर लिंक कौन सा है? अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वीडियो से मिलना चालू हो जाएगा, थ्रू विच यू आर एबल टू गो फॉर डाउनलोडिंग द मटेरियल. चलो यहां तक तो मैं आ गया. अभी मुझे JPA रिलेटेड टास्क कंप्लीट करना है. देन व्हाट आर द टास्क व्हिच आई नीड टू कंप्लीट टुवर्ड द JPA? पहले डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है. सो आई गिव राइट क्लिक ऑन प्रैक्टिकल 1A, सेलेक्टेड न्यू एंड सेलेक्टेड द ऑप्शन कॉल्ड एज अदर. अदर्स आने के बाद में सबसे पहला काम आपको करना है, यहां पे परसिस्टेंट नाम का एक कैटेगरी है. सेलेक्ट दिस कैटेगरी कॉल्ड एज परसिस्टेंस, और इसमें आप सिलेक्ट करोगे परसिस्टेंस यूनिट. दिस इज द XML फाइल. What this is? This is the XML file which will be holding your connectivity aspect. So I'd given a click on next. Here it asks you what is the persistent unit name. Normally आपका प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, उसके आगे ही आता है PU करके, वही persistent unit का नाम रहता है. पर अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो. फिर याद रखो आपने वो क्या स्पेसिफाई किया हुआ. मूविंग अहेड, persistent प्रोवाइडर आपके पास बहुत सारे, हाइबरनेट है, Eclipse Link है, but I am interested in using what is Eclipse Link, so I am selecting over here persistent provided as Eclipse Link. Moving ahead, Java का transaction API, what you want, table generation strategy क्या होगा, create होगा क्या, drop and create होगा, मतलब already created होगा, वो drop होने के बाद में create होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा. If you are selecting none over here, that is also okay. Then give a click on finish. So you will find that practical 8APU करके आपका persistent unit name बन गया. और ये है आपका ये सोर्स. दिस इज द XML फाइल, एंड यू विल फाइंड दीज आर ऑप्शंस आर बीन स्पेसिफाइड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन. तो ये कॉन्फ़िगरेशन में ये सब ऑप्शंस क्या आ गए आपके पास में सेट करके आ गए हैं. चलो मेरा परसिस्टेंट यूनिट तो बन के हो गया. नाउ व्हाट एल्स आई वांट. अभी मैंने बताया था ORM क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग. थियरी लेक्चर में मेरे पास क्लासरूम में आप पढ़े हो, उसमें मालूम है आप लोगों को कि हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि वी विल बी हैविंग अ रिकॉर्ड इन योर RDBMS एंड वी आर हैविंग अ क्लास इन व्हाट योर Java. So you need to have a mapping of the class and record, and for that reason we are using this particular JPA concept, ORM concept. तो मेरा तो JPA का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करके हो गया. The next thing is what, मुझे अभी यहाँ पे क्लास बनाना पड़ेगा, एक एंटिटी क्रिएट करना पड़ेगा जो मैप करेगा टेबल के साथ. For that reason, I had given a click on new and selected the option called as what other. Here again, I am selecting the option that is name as persistence, and here I am selecting the option as entity classes from database. तो इंपॉर्टेंट बात है, पहले हम लोगों ने क्या क्रिएट किया था, persistent unit क्रिएट किया था. अभी क्या क्रिएट करने वाले, एंटिटी क्लासेस फ्रॉम डेटाबेस. तो डेटाबेस का ये टेबल और ये क्लास, ये दोनों का मैपिंग के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, एंटिटी क्लासेस फ्रॉम डेटाबेस. Then give a click on next. उसने मुझे पूछा डेटा सोर्स क्या है. अपना डेटा सोर्स क्या था आपको मालूम है, अगर नहीं याद आ रहा है यहाँ पे तो न्यू डेटा सोर्स में क्लिक करो. ये पूछेगा डेटाबेस कनेक्शन क्या है, आपका BSc IT का था, याद कर लो. सो आई एम सेलेक्टिंग द BSc IT. डू नॉट फॉरगेट टू यूज SSL equal to false.
अगर यहां पे नहीं है तो बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं. देन JNDI का नाम क्या देना है, मैंने लिख दिया मे बी इन्वेंट्री test JNDI. Then give and click on OK. So we'll find our connection has been established with our backend. And here it shows me the different tables which are present. And I need to use a table called as inventory. So from the available tables, I had selected the table named as inventory, then give and click on next. Here it shows me that our project is called a practical 8A. We need to create one class. I am creating my favorite package com.text. And this says that generate the named query annotation for persistent unit. Yes. Then give and click on next. देखो जनरेशन टाइप क्या न्यू है, तो अभी ये क्या क्रिएट करने वाला है, अभी ये क्रिएट करने वाला है आपका क्लास. तो चलो कर लेते हैं. यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किया मैंने, फिनिश में क्लिक कर दिए. तो आप देख सकते हो com.text के अंदर यहाँ पे inventory.java, तो एक क्लास बनेगा जिसका नाम रहेगा इन्वेंट्री. एंड ये इन्वेंट्री क्लास में एंटिटी बना, टेबल कौन सा, इन्वेंट्री. And here you will find in this class the member variables are created named as SKU for the column name as SKU, named as item name for the column name called as item name, and हर एक member variable का getter setter method create होगी. Getter method for retrieving the value, setter method for assigning the value. चलो यहां तक तो एकदम सिंपल फंडा हो गया अपना. तो ये क्या हो गया, आपका टेबल का रिप्रेजेंटेशन क्लास. What is this? This is our representation class for our table. इसके बाद में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करना है, जरा ध्यान देंगे. अपना मेरा MySQL का वर्जन 8 पे है, तो एक ग्लासफिश रिसोर्स जो है ये बाय डिफॉल्ट चल रहा है, बिकॉज हम लोग ओल्ड वाला नेटबीन्स यूज कर रहे थे 8.2, तो वो MySQL का 5 पॉइंट का वर्जन इंप्लीमेंट करता है. पर हम लोग तो MySQL का हायर वर्जन इंप्लीमेंट करने वाले और कर रहे हैं. अगर आप लोअर वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको ये स्टेप करने का जरूरत नहीं है. पर अगर आप MySQL का हायर वर्जन यूज करने वाले 8 और 8 पॉइंट के आगे का, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है. कौन से, इसमें ये JDBC कनेक्शन पूल में आप चले जाओ आगे 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 आगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा आपका डेटा सोर्स क्लास नेम जो आया रहेगा com.mysql.jdbc.optional.mysql data source. उसको डिलीट करो और उस जगह पे आप स्पेसिफाई करने वाले हो डेटा सोर्स क्लास नेम एज com.mysql.cj.jdbc.mysql data source. सो प्लीज ये स्टेप्स आपको तभी करना है जब आप हायर लेवल का MySQL का वर्जन यूज करने वाले हो तब. अगर आप 5.2 यूज कर रहे हो तो ये स्टेप करने का जरूरत नहीं है. बट एज आई एम यूजिंग द 8 पॉइंट वर्जन, आई एम मेकिंग दिस स्मॉल चेंज इन व्हाट माय डेटा सोर्स क्लास नेम. सर कैसे देखने का MySQL वर्जन? अरे सिंपल बात है यार. MySQL का कमांड लाइन क्लाइंट को सिर्फ ओपन भी कर लोगे, पासवर्ड भी डाल दोगे, सीधा बोल देता ना सर्वर वर्जन 8.0.28. सो आई एम यूजिंग 8 पॉइंट वर्जन. सो प्लीज सी टू इट. वो ये चेंज तभी करना है जब आपके पास हायर वर्जन है. लोअर वर्जन में ये चेंजेस करने का जरूरत नहीं है. चलो यहां तक का मेरा टास्क तो कंप्लीट हो गया. मेरा HTML पेज क्रिएट हो गया, मेरा मैपिंग क्लास क्रिएट हो गया फॉर अ टेबल नेम्ड एज इन्वेंटरी, एंड नाउ आई नीड टू डेवलप माय सर्वलेट व्हिच विल बी एक्चुअली वर्किंग विद द adding of the record which is been accepted from my HTML to the servlet. तो सर्वलेट क्रिएट करना बहुत सिंपल सा टास्क है. प्रैक्टिकल में चला गया, न्यू में क्लिक किया, सर्वलेट क्रिएट किया. सर्वलेट का नाम क्या देना था, ऐड इन्वेंटरी. सर यही नाम क्यों दिया था? फॉर्म के एक्शन में क्या नाम दिया था, ऐड इन्वेंटरी. और यहाँ पे पैकेज का नाम दे दिया मैंने com.test, मेरा फेवरेट पैकेज. नेक्स्ट में क्लिक कर दिया एंड गिवन क्लिक ऑन फिनिश. तो यू कैन सी ओवर हियर फॉर्म के एक्शन में दिया था मैंने ऐड इन्वेंटरी, तो इसलिए मैंने यहां पे भी क्या दिया, ऐड इन्वेंटरी. क्लियर? सो ये हो गया मेरा सर्वलेट. और ये सर्वलेट का टास्क क्या है? ये सर्वलेट का टास्क है रिकॉर्ड को ऐड करना. किसके अंदर? इन्वेंटरी टेबल के अंदर, विद द हेल्प ऑफ JPA. विद द हेल्प ऑफ ODR JPA. तो JPA में कौन से क्लासेस है जो आपको यूज करना है? Major classes which are been used by us that are called as Entity Manager Factory, Entity Manager, Entity Transaction. ये तीन क्लासेस हम लोग को यूज करने पड़ते हैं. One is called as Entity Manager Factory, second is named as Entity Manager, third is named as Entity Transaction. क्लासरूम में मैंने ये सब सिखाया हुआ है. ये सर रिकैप के हिसाब से वीडियोस है, तो इसलिए मैंने साइड में कंटेंट भी रखा हुआ आप लोगों के लिए.
if anybody want a detailed video etc, you can just ping me up. I will try to go for helping you to understand in detail. But भाई सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो क्लासरूम में कौन आएगा, राइट? सो बेसिक्स चीजें आपको यहाँ पे बताया हुआ है, और आप कॉलेजेस में पढ़ रही हो तो यू आर एबल टू गो फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल. अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल में जो आपको हिचस आता है वो क्लियर करना, ये काम है ये यूट्यूब वीडियो. सो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री है, एंटिटी मैनेजर है, एंड एंटिटी ट्रांजैक्शंस है. तो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर द टास्क व्हिच आई रिक्वायर टू डू इट. The first task which I require to do it, I require to create an object of entity manager factory. So मैंने यहाँ पे entity manager factory का object create किया. सर एरर आ रहा है बाबा, आपको पैकेज तो इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया javax.persistence.entityManagerFactory, और persistent का भी जो पैकेज था वो भी मैंने इंपोर्ट कर लिया. सो एरर तो चला गया मेरा. एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है. पर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपका पीयू का नाम, सर मेरा पीयू का नाम क्या था आपको मैंने बताया था. डिफॉल्ट नेम क्या हो रहा था, प्रोजेक्ट नेम, आगे पीयू लिखे आता है. और तभी आपको याद नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आप परसिस्टेंट एक्सएमएल को डबल क्लिक कर लो. यहाँ पे आपके पीयू का नाम है प्रैक्टिकल नंबर 8A पीयू. अगर आपने क्रिएट करते हुए पीयू नाम बदला होगा तो आपको यहाँ पे वापस एक बार उसको चेंज करना ही है. तो आई हैड मेंटेन दिस पर्टिकुलर नेम. चलो पीयू का काम हो गया, मतलब एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का फर्स्ट टास्क हो गया. सेकंड टास्क इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग व्हाट ईयर एंटिटी मैनेजर विद द हेल्प ऑफ द एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री. सो आई हैड गॉन फॉर कंप्लीटिंग द टास्क ऑफ एंटिटी मैनेजर with the help of the entity manager factory, right? After entity manager, what is needed? We need to add the record, we need to retrieve the record, we need to delete the record, we need to update the record. तो ये सब करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, entity transaction चाहिए. So I will be now creating an object of what here entity transactions. तो यहाँ पे आगे हम लोग लेके आए क्या रे बाबा, entity transaction, और यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया गेट ट्रांजैक्शन. तो नया ट्रांजैक्शन क्रिएट करने के लिए क्या आ गया, एंटिटी ट्रांजैक्शन. ओके, सो नाउ वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंटरी क्लास बाय सेइंग इन्वेंटरी i1 equal to new inventory. Object has been created. Then providing i1 dot set SKU. I need to pass integer dot parseInt in the bracket request dot get parameter. ऑब्जेक्ट नेम क्या था जरा देखेंगे. index.html में अपना ऑब्जेक्ट नेम था SKU, के लिए नाम भी दिया था, SKU करके दिया था. तो यहाँ पे लिखेंगे request dot get parameter SKU. चलो यहाँ तक हो गया. उसके बाद में लिखेंगे i1 dot set आइटम नेम. वो तो स्ट्रिंग ही था तो कुछ इंटीजर करने की जरूरत नहीं है. request dot get parameter आइटम नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, आइटम नेम नहीं था, तो यहाँ पे लिखा मैंने आइटम नेम. Fine, moving ahead, then I am providing i1 dot set item quantity. Again, same one, integer dot parseInt in the bracket request dot get parameter. क्या था बाबा अपना पैरामीटर का नाम, आइटम क्वांटिटी का. The item quantity parameter name was कहाँ गया रे बाबा, देखो मैं. Okay, it was item quantity. So here it comes. Again, I am going to specify over here as item quantity. Item QTY था. And then I'm providing i1 dot set item price. Again providing integer dot parseInt in the bracket request dot get parameter and item price. चलो यहाँ तक तो करके हो गया. Then I require to begin the transaction by using the entity transaction by providing entity transaction dot begin. So transaction begin. Then I would like to save the object. So I'm providing entity manager dot persist, and here the object name ever has been passed. Then providing entity transaction, and transaction need to be committed. So I'm providing entity transaction dot commit. चलो, और इसके बाद में एक छोटा सा मैसेज दिखा देता है by saying out dot println. H1 में दिखा देता हूं मैं, H1 record is added सक्सेसफुली, क्लोजिंग ऑफ द H1. चलो समीकरण डाल दिया. एक बार वापस देख लेते हैं. अपना परसिस्टेंट एक्सएमएल में सब सेट है ना, बराबर से. हाँ बराबर से सेट है. अपना क्या है, परसिस्टेंट नेम प्रैक्टिकल 8A PU डेटा सोर्स प्रॉपर्ली सेट किया है जो हम लोगों ने क्रिएट किया था. एवरीथिंग इज सेट प्रॉपर्ली. नाउ आई एम गोइंग टू index.html, राइट क्लिकिंग एंड सेलेक्टिंग रन फाइल. Okay, it shows me there is some error. So let us try to resolve the error.
ओके, आउट डॉट प्रिंट ln डबल कोट्स कंप्लीट करना बाकी था, डबल कोट्स कंप्लीट कर लिया, सेव कर लिया, एरर्स आर रिजॉल्व्ड. नाउ अगेन आई एम रनिंग द HTML पेज. Here it asks me about the SKU, so I'm providing SKU as 7896, item name I had given as laptop, the price I had given as 35,000, the quantity I'm having as 10, and adding the inventory. It shows me no records, ना मैसेज आना चाहिए था add record successfully, पर वो आया तो नहीं. तो अभी क्यों नहीं आया वो एक बार देख लेंगे. आउटपुट में कुछ एरर से का देख लेता है. तो यहाँ पे ग्लासफिश प्रोसेस में गया और यहाँ पे चेक करना चालू कर दिया व्हाट इज द एरर इज ऑल अबाउट. तो एक बार देख लेता है. yes, there is some error which has been shown over here. What it says that illegal argument exception com.test.inventory is not known as entity type. चलो देख लेते हैं इसमें क्या इशू है. एंटिटी ट्रांजैक्शन कमिट कर दिया, एंटिटी मैनेजर से परसिस्ट कर लिया, I1 नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, I1 नाम का ऑब्जेक्ट है, बराबर है, आइटम SKU डाल दिया है, नेम डाल दिया है, क्वांटिटी डाल दिया है, ये सब इंटीजर में डाला है. सर आइटम नेम क्या डाला हुआ है हम लोगों ने, स्ट्रिंग में डाला हुआ है. बाकी सबके लिए SKU के लिए भी पार्सेंट किया है. आइटम नेम, आइटम क्वांटिटी सबके लिए प्रॉपर दिया हुआ है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. तो एक बार चेक कर लेंगे वापस एक बार क्या इश्यू हो रहा है. तो राइट क्लिक करेंगे, एक बार क्लीन एंड बिल्ड कर लेते हैं. क्लीन एंड बिल्ड, एक बार परसिस्टेंट एक्सएमएल में जाके चेक कर लेंगे सब कुछ बराबर है कि नहीं है. तो परसिस्टेंट एक्सएमएल चला गया, एवरीथिंग इज बीन सेट अकॉर्डिंग टू मी प्रॉपरली. चलो ये बराबर है, ये बराबर है. लेट्स सी इन्वेंट्री में अपना SKU का नाम बराबर दिया है कि नहीं दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन बराबर है, ईयर प्रैक्टिकल PU का नाम बराबर है देख लो, प्रैक्टिकल 8A PU, ओके प्रैक्टिकल 8 था तो 8A PU हो गया. अकॉर्डिंग टू बी एवरीथिंग इज प्रॉपर. एक बार सिर्फ देख लेंगे अपना आइटम प्राइस, आइटम क्वांटिटी, आइटम प्राइस, ये कभी कभी नाम में इश्यू आ सकता है आप लोगों के. तो नेम में SKU है, आइटम नेम है, आइटम QTY और आइटम प्राइस. चेक कर लो, आइटम QTY, आइटम प्राइस, एंड ऊपर दिया था हम लोगों ने आइटम नेम और यहाँ पे नाम दिया था हम लोगों ने SKU. तो स्पेलिंग मिस्टेक मुझे लगता नहीं कुछ है करके. चेक कर लो भाई, SKU, ITEM, नेम, आइटम, क्वांटिटी, आइटम प्राइस. एक बार वापस रन करके देखते हैं क्या इश्यू है करके. तो राइट क्लिक कर लिया, रन फाइल कर लिया. It asked me about the details. I am providing the SKU 789, item name. अच्छा नाम देते हैं. Laptop price is being given by me and quantity is being given by me. Adding inventory, yes, record is added successfully. तो चेक कर लेंगे सच में टेबल में रिकॉर्ड गया है कि नहीं गया. तो यहाँ पे इन्वेंट्री में गया, व्यू डेटा में गया, and you can see, yeah, laptop has been added, price has been added, quantity has been added. And this is a simple way by which we are completing our JPA program. So class, please subscribe the channel and wait for my next videos. I am adding the same thing again and again. The 8 practicals will be completed, 9 will be completed. So please stay tuned with us. We will be also going to upload all the materials, question answer pattern notes, etc. in our Telegram channel. So please subscribe the channel. Thanks a lot.